I've seen videos of you speaking in English about awareness. Yes. Voila. Yes. You are the great person. Really. He understood very nice. This is real understanding. It happened because of the love. If you have love, language has no problem. Many people were there in Pune, they don't know Hindi. But I was seeing 80% foreigners were there, 20% Indians, or a little bit more. And they enjoy very nicely the presence of Osho. Just anyway, talking is excuse. Always excuse. You can't feel direct presence because your body did drama. When somebody talking, because of the talking, you can feel the presence. So, question never significant. You surprise. Always question excuse. Also said many times about that. Any kind of question excuse. You can't sit in front of me without any excuse. So I start this. And so many answers, so many jokes. He did lot of drama actually. Sometimes against, opposite, he played the language. Sometimes he was talking about this, and sometimes he was talking about that. Just opposite. There was no question. There was the presence. If you have a love with Master, then language is not barrier. Because heart has no any language. Language here. Like a love. Love has any language? Somebody Indian, somebody American, somebody English, many people in one place, but heart is same. So, just like a love has no need to any language. You can follow love with any country woman. Love not wait for language. Language is language. If you are feeling love, then you can understand everything. And this relation, totally relation, heartly relation, not here. You cannot relate it with anybody else, with mind. Mind has no this act. Mind always split. I can say like this, mind is destructive phenomena. And heart is totally opposite. Heart feeling is totally different feeling. We are one. Just like I am looking you surprised. It seems we are 30 people. But for me, no one is here. I am present here, you are present there. You have a being, I have a being. Being is the inner core of the heart. Nobody can touch. Nobody can do anything with your heart. If you want to do something with somebody, use mind. You want to live with someone, heart. You can live with heart. You cannot do with heart anything. You can live.
If you want to do, use mind. So mind is a big barrier between love. Or this is love affair between me and you. For saying between me and you, love to love. The relation between love to love. Love can relation with love only. You surprise. Because love has no inequality. Without any quality. So I can't explain many things now. So please you now start our which technique now? और हिंदी में तो आप मुझसे शाम तक पूछोगे ना तो रात भर बातें करता रहूंगा। नहीं तो हिंदी में किसी को और प्रश्न पूछने हैं? और जरूरत है क्या? तो ही पूछे। प्रश्न तो काफी आए थे। ये आपका नहीं प्रश्न तो उत्तर तो एक ही में आ जाते हैं ना। थोड़ा पता नहीं सांस। You ask? Really you have question in this moment? एक प्रश्न था, अगर अनाहट नाद सुनाई देता हो तो क्या सुनने में उस पर ध्यान देना चाहिए, या वही अगर सहस्त्रार चक्र खुला हो और अनाहट नाद सुनाई देता हो? अगर किसी के जीवन में अनाहद नाद का उदय हुआ हो, मनुष्य के जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घटना उसमें उतरती है जब उसमें अनाहद नाद का जन्म होता है। अब कभी कभी ये होता है, कभी कभी नहीं होता। किन्हीं क्षणों में होता है, किन्हीं क्षणों में नहीं होता। शुरू में ऐसा होता है। और यदि आप जागृति से जीने लगे तो ये आप में टिकता है। असली में परमात्मा तो आप में टिकना चाहता है, और उसका टिकने का जो रूप है वो अनाहत है। अनाहत रूप में उसकी शुरुआत होती है किसी के भीतर। पहली प्रतीति परमात्मा की अनाहत के रूप में आती है। उसका कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, बस वो होता है। फिर हम उसे नाम अनाहत की तरह देते हैं। अगर आप उसके प्रति पूरी जागृति को रखेंगे तो आपके पोर पोर में बैठ जाएगा, आप पे कब्जा कर लेगा। और धन्यभागी हैं जिन पे अनाहद नाद कब्जा कर ले। जब आपका रेसा रेसा एक ऊर्जा से भर जाएगा, आपकी पूरी नस नस बदल जाएगी। सब कुछ बदल देता है अनाहद नाद। तरकीब यही है कि उसके प्रति बहुत होशपूर्ण रहना। इस सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। अनाहद नाद से लौट सकता है आदमी संसार में, क्योंकि शुरुआत हुई है अभी, और शुरुआत खो सकती है। जैसे अग्नि की अगर शुरुआत हुई है कहीं और उसको प्रॉपर ईंधन न दिया जाए और हवा ववा लग जाए उसमें, तो अग्नि के बुझने की संभावना रहती है। वही अग्नि जो भभक के जल सकती है वो बुझ भी सकती है, क्योंकि शुरुआत है। तो ये परमात्मा की अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी। अभी तो बहुत और ज्यादा जागृत होकर जीने की जरूरत है। जिनके जीवन में शायद और भी लोगों को घटा हो, और इस यात्रा में होता ही है। इस यात्रा में जब लोग और गहरे जाते हैं तो उनकी जो पहली प्रतीति होती है वो नाद की ही होती है। तो आप इतनी उसको आप जागृति का साधन बना लें, उसके प्रति जागृत रहो। तो ना वाणी के प्रति जागृत होना, शरीर के प्रति नहीं जागृत होना। अगर अनाहत के प्रति जागृत
रहेगा तो ये सबको जागृत कर देगा, आपकी वाणी को भी जागृत कर देगा, और आपकी हर चीज जागृत हो जाएगी। क्योंकि जागृति का दूसरा ही नाम है अनाहत नाद। ये ऐसा है जैसे अग्नि का प्रकट हो जाना। अग्नि व्यापक है सब में, लेकिन कहीं कहीं प्रकट होती है। जब प्रकट होती है तो उसे ईंधन की जरूरत पड़ती है। अगर ईंधन न मिले तो बुझ जाएगी, अगर ईंधन नहीं मिला तो वो बुझेगी। और जागृति जो है वो ईंधन का काम करती है। क्योंकि जागृति का मतलब क्या है, आप उसमें जलने लगे, आप ईंधन हो गए उसका, आप दग्ध हो रहे हैं उसके अंदर। जैसे जैसे आप जागृत होंगे आप अनाहत में समाएंगे, और अनाहत आपको अपने आलिंगन में पूरा का पूरा समा लेगा, बसा लेगा। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। अगर सौभाग्य से ऐसा घटा हो, ये बात मैं पूछने वाला था कि किसी को यहाँ अनाहत का एहसास होता। हमारे यहाँ तो बहुत लोगों को होता है। हमारे यहाँ तो जो 2-3 महीना रह जाते हैं उन सबको होने लगता है, क्योंकि हम जिस ढंग के प्रयोग करवाते हैं और उसको की जिस ढंग की प्रेजेंस वहाँ होती है, वहाँ ये खुल ही जाता है। बहुत लोगों को खुल रहा है। जब खुल जाता है तो हम बहुत आश्वस्त हो जाते हैं। बस फिर बताते हैं कि ऐसे खो मत देना, एक चीज मिल गई तुम्हें बहुमूल, बहुत बहुमूल। तो अब जस पनिहार धरे सिर गागर, आप संसार का कोई भी काम करते रहो, लेकिन इसके प्रति जागृति आपकी बनी रहे। हीरा है जो आपके पास, ये खो ना जाए। इसलिए जब जिनको ऐसा घटता है तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है कोई बात हुई, कोई बात बहुत अच्छी पूछी आपने, सब प्रश्नों से अच्छा प्रश्न पूछा। जितने प्रश्न थे वो ठीक है, लेकिन असली प्रश्न तो मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा पूछे। तो ये बड़ी सुंदर घटना है। और मित्रों, किसी को पता हो कि ना हो, ये घट सबके भीतर रहा है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इनको ध्यान लग गया, ख्याल आ गया, इतना फर्क। ऐसा मत समझना कि आप में नहीं, आप बिना अनाहत के हो ही नहीं सकते। आपका संचालन पूरा का पूरा अनाहत नाद से हो रहा है। आपके ब्लड का संचार भी उसी से हो रहा, आपकी सांसें भी उसी से धड़क रही, आपकी आंखों में ज्योति भी उसी से, आपके कानों में सुनने की ताकत भी उसी से। बस वो इतना व्यापक है तुम्हारे अंदर कि उसका तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। लेकिन व्यापक तो जितना मेरे अंदर है उतना ही आपके अंदर है। इनको थोड़ा सा पता लगा, मुझे ज्यादा पता लग गया, बस इतना सा भेद। आपको शायद पता नहीं लगा, या लगा होगा तो थोड़ा बहुत लगा, लेकिन हम सब उससे आपूरित थे। उसने हमें धारण किया है। परमात्मा का मतलब ऐसी सत्ता जो हमें धारण किए, और वो इतनी गहराई से धारण किए है कि उसका स्पर्श हमें नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम इतने जागृत नहीं। जैसे जैसे तुम जागृत होगे, मजा तो इसी बात का आएगा। जैसे जैसे तुम जागृत होगे तुम परमात्मा को छूने लगोगे, और जैसे जैसे परमात्मा को छूओगे तो जो मुर्दा में जान आएगी, जो मुर्दा और जीवंत होगा। और जो मुर्दा जब तक पूर्ण रूप से जीवित नहीं होगा तब तक ये जन्म ही लेता रहेगा, क्योंकि ये मरण धर्मा चैतन्य हुए बगैर मुक्त नहीं हो सकता। जैसे अग्नि में लकड़ी जब जल जाती है तो अग्नि मुक्त हो जाती है, वो लकड़ी के रूप से मुक्त हो गई, तो कोई और खेल हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा होना है, ये होना पूर्ण रूप से परमात्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और व्यापक रूप से वो आपको धारण किए हुए है। आपको पता नहीं है, वो अलग बात है। सारी वासनाएं भी उसी से जन्म रही हैं आपके भीतर। आप वासनाओं को भी नहीं जी पाएंगे उसके बगैर, तो ये भी उसकी मौजूदगी का खेल है। आपकी समस्त भावनाएं उसी का खेल, और वो आप में व्यापक है। जब जागृति से देखते हैं हम, क्या बाहर देखने लगते हैं, बाहर हमारी दृष्टि बहुत पड़ती है, तो हम पे तो हमारा ध्यान जैसे है ही नहीं। और जब हमारा हम पे ध्यान आता है तो उसका स्पर्श मिलने लगता,
और उसके स्पर्श में जो स्पष्टता आती है वो ये है कि वो अनाहत की तरह स्पर्श कर रहा है आपको, अनाहत की तरह उतरा है आपके भीतर। बैठे ही रहो, फिर तो देखते ही रहो, देखते रहो। आपको कुछ करना नहीं है, बस जागे रहना। करेगा तो परमात्मा ही। आप सिर्फ जागे, अगर जागे रहेंगे तो आप जैसे करने दे रहे हैं उसको, क्योंकि परमात्मा का खेल भी ऐसा है कि जबरदस्ती नहीं है। वो जबरदस्ती नहीं करता, नहीं, सारी पृथ्वी को उठा देता है एक क्षण में। तुम तैयार हो तो ही तुम्हें मारेगा। तुम्हारी मरने की पूरी तैयारी हो, और जैसे जैसे तुम्हारी मरने की तैयारी होगी वैसे वैसे वो तुम्हें निगलेगा, मिटाएगा, और वो मिटा के स्वयं अपने स्वरूप में ले आता। तुम जब मिटते हो तो वही होते हो। मजा देखो, जब तुम मिटते हो तो वही होते हो, क्योंकि संसार के नियम में मैंने बताया कि जिसमें मिटते हो वो हो जाते हो। नियम तो वही काम करेगा। अगर मिटना ही है तो परमात्मा में मिटो, मरना ही है तो उसमें मरो। मरण बड़ा मीठा, इस मरनी का फल बड़ा मीठा। तो शो कहते मरो रे जोगी मरो, मरण बड़ा मीठा, इस मरनी का फल बड़ा मीठा। अद्भुत फल लगता है। और हम सबकी शुरुआत तो हो गई है, नहीं तो मुझे मिलते ही नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हो तुम कहीं ना कहीं तो मरने राजी हो गए यार, इसलिए आ गए यहाँ पे। नहीं ऐसा कैसे आ जाते? जाने अनजाने तुम्हें पता हो कि ना हो, लेकिन अब तुम्हारी तैयारी मरने की है। और अच्छी शुरुआत है जैसा मैं देखता हूं। अब डटे रहो, इसी खेल को खेलो। एक खेल तुम्हें मिटा देगा और बना देगा। एक खेल मिटाता है एक तरफ और एक तरफ बनाता। अद्भुत खेल है। एक तरफ से तुम्हें मिटाता है और एक तरफ से बनाता है, और फिर कुछ ऐसा बना देता है कि बनने की भावना ही खत्म हो जाएगी हमेशा। क्योंकि जाने अनजाने तुम परमात्मा ही होना चाहते हो। तुम चाहे पति होकर जियो, चाहे पत्नी होकर जियो, चाहे धनी होकर जियो, चाहे अमीर होकर जियो, लेकिन गहरे में डीप डाउन तुम्हारी जो वासना है, जो अत्यंतिक वासना है, वो परमात्मा होने की। तुम होना तो परमात्मा चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है, अंधेरे में तीर मारते रहते हो, कुछ का कुछ होते रहते हो। लेकिन जो तुम होना चाहते हो उसने ऐसा प्रसाद दिया है तुम्हें, जो होना चाहते हो वो हो जाते हो। चलो अमीर हो जाओ, गरीब हो जाओ, जो होना हो जाओ, लेकिन सबसे थक थका के। अब ये एक यात्रा है, तुम भटके हुए नहीं, कोई भटका हुआ नहीं होता यहाँ। मैं किसी को नहीं देखता कि कोई भटका हुआ है। अटका हुआ होता है, भटका हुआ नहीं। अटक गए, पति होके अटक गए, कुछ और होके अटक गए, तो कितनी अटके रहो, क्योंकि कोई भी अटकन आपको परमानेंट रूप से नहीं अटका सकती। उसमें से सटक जाते हो, आप निकल जाते हो और दूसरी तरफ अटक जाते हो, जो तुम्हारा चलता रहता खेल। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी जो संभावना है, मैं तो आपकी संभावना देखता हूं। जैसे आप हो, मैं नहीं देखता आपको वैसा। अगर वैसा देखूं तो हो गया काम। जैसे आप हो, मैं वृत्ति पर नहीं देखता जैसे आप हैं। उसकी मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, व्यभिचारी हैं, ये हैं, वो हैं, ये मुझे नहीं देखना है। मैं आपकी संभावना देखता हूं कि एक दिन आप जिसकी प्यास छाती में लेकर बैठे हैं वो होने वाले हैं, और वो यात्रा चालू हो गई। फिर ये कितनी भटकने तुम्हारी चलती रहे, तुम एक दिन वो होगे ही, क्योंकि वो नियति है। जाओगे कहाँ? कोई कहीं नहीं जा सकता है, कोई कहीं नहीं भटक सकता है। अटके रह सकते हो, जन्मों अटके रह सकते हो, लेकिन पहुंचना तो आपको अपने गंतव्य में, और परमात्मा तुम्हारा गंतव्य है। तुम उसकी शुरुआत हो और वो तुम्हारा अंत है। तुम परमात्मा की शुरुआत हो और परमात्मा तुम्हारा अंत है, और तुम उसी में मर रहे हो। और प्रेम मरने का
गजब का ढंग है, मरो तो प्रेम से मरो। अब यहाँ जो संसार में हम मरते हैं, मरने में मरते हैं, कहते हैं प्रेम में मर रहे हैं। अरे पतंगा होकर मरने का कोई मतलब हुआ? और बड़े गीत गाते हैं पतंगा मर गया। क्या हो गया? मर गया, आग में जल गया, मर गया। कोई मर गया क्या? तो ऐसा मरना कोई मरना नहीं होता। मरो तो प्रेम में मरो, मरो रे जोगी मरो। और परमात्मा का प्रेम बहुत मीठा होता है। तो अब हम सब उसमें मरने की तैयारी करते हैं। अभी ध्यान लगा